the understanding data quality, element of data quality, those type error and importance of data. Question is here, how can you define the quality data? Quality of data and how to make the data quality. So before going to define the quality of data, let us see the type of data, what is data, and how to make the data quality. If the data is a quality, you can take the quality decision. If data is not the quality data, you can't take the quality decision. But how can you define a data is a quality? Let us see here in multi-dimensional measures of data quality. So, well accepted multi-dimensional view. The quality data means a data should be accurate. The accuracy should be in a data. Okay. So, accuracy. If data is accurate, then you can say the quality. Another parameter, completeness. Third one, consistency. Timeless, reliability, value-added, interoperability, accessibility. These are the parameters on which you can judge whether the data is a quality or not. I'll explain one by one in detail. And the broad category is intrinsic, contextual, representational, and accessibility. So these all are the parameter for a quality data. How can say this is the quality data, this is not the quality data. If the data is a quality, you can give the quality decision. So before going to discuss the good quality of data, we can see how to make the good quality of data. To make the good quality of data, we can pre-process the data. Pre-process of data, that is known as a data pre-process, is a technique to make the quality data, in which the question is here, why pre-process the data? Why the pre-process of data is required? Descriptive data summarizations, data cleaning, data integrations and transformations, data reductions, distinctions and concept hierarchy and generations. We can perform these all operations to make the data quality. These are also the function of data mining. So question is here, why data pre-processing is required? So data in real world is dirty. The data in real world is not the clean data. So the data in real world is a dirty. But how can you say the real world data is a dirty? How can you define? Dirty means incomplete data. Whatever you want to take the decision and you have not the complete information. For an example, suppose you are a proctor in a university and one complaint received by you. He do such type of activity with me. But that is complete data or not complete data? No one going to prove it. And on that data, you have taken the decision. That means your decision is wrong. Anyone can claim किसी आया और कहा कि सर इन्होंने मुझे चाटा मारा और आपने उस पर डिसीजन ले लिया। हो सकता है वो गलत इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, चाटा मारा तो क्यों मारा, यानी कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि मारा तो क्यों, कोई रीजन है, तो दैट इज इनकम्प्लीट डेटा. So if data is incomplete, that is not the quality data, that is the dirty data, because that is not show the complete informations. So incomplete, lacking of attribute value, lacking certain attributes of interest
and containing only an AG. For example, in real life, suppose you ask what is your occupations? Your occupations dash. This is not the complete data. There is a occupation, and in front of occupation nothing is given, so you can say it is a incomplete data. If it is incomplete, that means it is a dirty data. Noisy, containing error or outlier. For example, salary minus 10. So that is the noisy data. If data is a noisy, that means data is a dirty. The salary can't be negative. If you are giving my salary is minus 10,000, so it is not possible. So that is the noisiness. Another, inconsistent. The containing the discrepancy in the code or name. That is inconsistent. Somewhere age is 45 and birthday 3/7/1970. From your date of birth, your age is something, but you are writing age is 42. It is not possible. So it is a inconsistent. One place you are writing my age is 42. Another place you are writing my date of birth is this. According to that date of birth, the age is different. So that is inconsistent. Another example for inconsistent data was rating 1 to 3 and now rating ABC. You have mentioned write your code in term of ABC, but the option is given 1, 2, 3. So that is inconsistent. Whatever instructions given there, according to that instructions, your things are not different. That means there is a inconsistent. Whatever I am saying here and outside the class, I am saying another thing for the same. So that is inconsistent. So the data is inconsistent means the data is dirty, means data is not quality data. So question, why is data dirty? What is the reason why the data is dirty in the real world? So incomplete data may come. If you have a data incomplete, that means the data coming from somewhere is not the complete. So applicable data value when collected. This problem arises when you are collecting the data. You are asking from some people, and that people are not telling you the real things. That means you have a wrong data. Today, one person informed me, Mr. X is appointed as a vice chancellor. Okay, I agreed, and I told to some other people, but actually that is not happening. Right. So I am there telling the things is the wrong. That is incomplete or dirty data. So different consideration between the time when the data was collected and when it is analyzed. And timing play important role. You collected the data at 4 o'clock. The temperature is 45 degrees. Okay, and at 5 o'clock, 5 p.m., 4 a.m., you collected the data. Temperature is 40 degree, but you are saying the data temperature is 46 degree at 5 o'clock, but at 5 o'clock may be changed. The timing is also important. This is recorded at 4 a.m. or 4 p.m. If you are missing the a.m. and p.m., your data is wrong. Someone telling no, at 4 a.m. the temperature or pressure or the 40 degree or something else, but PM the data is changed. So time is also important when you are collecting the data. Collecting and when it is analyzed. What was the time to analyze and what was the time to collect? The data collected at different time may be different way. So that is the incomplete data may come. Right? Another noisy data. How the noisy data come? Incorrect value may come from faulty data collection instrument. Sometimes you are collecting the data from some instrument. You are going to measure the temperature of this room, temperature or pressure outside, and your measuring device is not accurate. That is faulty. So you have measured the data from outside. That means the data is wrong. That means there is a noise due to instrument fault. Another kind of
noisy data, human and computer error at data entry. When you are going to enter the data, for example, you are writing 42, in place of 42, you have written 24. That may be changed due to the error. Whatever you enter, you type from the keyboard. Here the typing of keyboard, you are writing 28, you are writing 82. The digit is changed, so data is wrong. And sometimes your data computer's fault keyboard, you are pressing 1 and it is printing 3. It may be fault in the keyboard. You are not watching on the keyboard, you are typing 1, yes, the direction of 1 is here. You type 1, but in place of 1, it is typing 2. That means the data is wrong, and that is data is noisy data. Another error in data transmission. Whatever data you transmit through internet, you are sending the mail from Delhi to Bombay. Meanwhile, in the way the data may be corrupted, the data sending the 1, 2, but data may be 1 is misplaced and 2 is receiving there. That is the wrong data. Such type of wrong data, noisy data, come from faulty data collection instrument, human computer error in data entry, and error in the data transmission. Such type of error in the data is known as the noisy data. If your data have a noise, then you can't say that is the quality data. Another inconsistent data may come from. Another kind of data that is inconsistent. But from where that inconsistent data comes? Different data sources. You are getting some information from him, from that girl, from that boy, and the all data on the same. See one example interview. You are taking interview from some people, they are saying something else. Other people are saying something else. Some people saying something else. So it varies from people to people. Whatever data you are getting here, that is inconsistency. तो कभी आप क्या करते हैं, किसी के बारे में पता करना होता है तो आप इनसे पूछते हैं, इन्होंने कुछ बोला और यहाँ पे पूछते हैं, यानी कि डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है। या आप हमसे बोल रहे हैं सर बहुत आप अच्छे हैं और बाहर जाके बोलते हैं सर बहुत खराब है, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी को भी देखना होगा कि डिफरेंट सोर्स से जब डेटा आ रहा है तो कितना कंसिस्टेंसी है डेटा में, कि एक आदमी को इवेलुएट करना है, डिफरेंट सोर्स से जो डेटा आता है तो आप उसमें एनालाइज करेंगे आप कि जो सबसे फिर मैक्स निकालेंगे, मिनिमम कुछ निगेटिव होगा और मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, तो जो पॉजिटिव है उसको आपने एक्सेप्ट किया। So, functional dependency violation. For example, modify some linked data, duplicate record, also duplicate data, and same data comes from different places. So, more than one data at for one region. So, that is the data duplications. एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है जामिया में, वो डिपार्टमेंट डेली आता है, एड्रेस जो है दोनों जगह डीन ऑफिस में और डिपार्टमेंट में सेम था। डिपार्टमेंट आ रहा था, उसका एड्रेस चेंज हो गया, तो आपने डिपार्टमेंट का एड्रेस को चेंज करा दिया, लेकिन डीन ऑफिस का चेंज नहीं करा। तो कभी डीन ऑफिस से लेटर भेजना होगा स्टूडेंट को तो रॉन्ग एड्रेस पे चला जाएगा, यानी कि डीन ऑफिस में एड्रेस कुछ और है और डिपार्टमेंट में कुछ और है। तो दैट इज द इनकंसिस्टेंसी इन एड्रेस। So that is the source of inconsistency of data. So these are the incomplete of data, noisy data, and inconsistent data that come from different places. That's why you can say data is a dirty. So why is data pre-processing important? The question is here: if your data is a dirty, and why the pre-processing is required? कभी भी जब आप रिसर्च करते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, एंड व्हाई दिस प्री प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। नो क्वालिटी ऑफ डेटा, इफ यू हैव कलेक्टेड द डेटा ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट डेटा इज नॉट क्वालिटी। यू वांट टू मेक द क्वालिटी डेटा, दैट मीन्स यू हैव टू प्री प्रोसेस द डेटा। आफ्टर प्री प्रोसेस यू कैन गेट द क्वालिटी डेटा, दैट मीन्स नो क्वालिटी डेटा, नो क्वालिटी mining results. So quality decision must be based on the quality. अब कहते हैं ना, the decision of this man is a quality decision. How can you say the quality decision? If the fact is wrong, so you can't take the right decision, quality decision. आपको भी कभी कभी कोई इंटरव्यू आता है तो आप कहते हैं कि अरे यार कितना अच्छा डिसीजन लिया, या यूनिवर्सिटी में है या गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट का पीएम का कोई डिसीजन आया
तो बहुत लोग उसको तारीफ करते हैं, दिस इज गुड क्वालिटी ऑफ डिसीजन, क्योंकि फैक्ट उसके पास अच्छा था और फैक्ट अच्छा नहीं है तो क्वालिटी आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। तो आप कहते हैं आपने जो डिसीजन लिया वो गलत डिसीजन लिया। तो बेस्ड क्वालिटी डेटा पे क्वालिटी डिसीजन हो सकता है। तो प्री प्रोसेस करने से आपको डेटा का क्वालिटी बढ़ जाता है। तो क्वालिटी डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द क्वालिटी डेटा। फॉर एन एग्जाम्पल, डुप्लीकेट और मिसिंग डेटा may cause incorrect or misleading statistics. Whatever data you supply, based on that data, you process it and get the result. So the result will be wrong because there is an error in your data because data was not right. कोई आपसे पूछे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, राइट? आपने कहा कि 2009, तो उसने आपका कैलकुलेट किया, जबकि एक्चुअली आपका 2009 नहीं था, आपका 2001 था। डेटा रॉन्ग दे दिया आपको। तो आपको एक स्कॉलरशिप देना था, इतने एज तक देना है, तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपका एज होने के बावजूद भी आपको आप डिजर्व करते हैं, फिर भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो वहां पे आपने जो डिसीजन लिया वो गलत। सो डेटा वेयर हाउस नीड ए कंसिस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी। तो कभी भी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको गलत पढ़ा दूं यहाँ पे और वही आपके दिमाग में बैठ गया, अब 10 लोगों के बीच में आप कहें वो बात, तो सब लोग आप पे हंसेंगे, क्या बात कह रहे हैं आप, हम एप्पल को ऑरेंज कह रहे हैं, हमने कहा कि दिस इज ऑरेंज, बल्कि वो एप्पल है। तो कोई आपको दिखाया कर क्या है, तो आपने कहा कि ऑरेंज है, जबकि वो एप्पल है, तो सब आप पे हंसे, क्योंकि हमने जो आपको नॉलेज दिया वो गलत नॉलेज दे दिया, रॉन्ग नॉलेज दिया, रॉन्ग डेटा दिया। इसलिए कभी भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो अगर कोई चीज आपको ना आए तो ना बताए, आता है तो बताइए, अदरवाइज वो कैरी करता है आगे तक। अगर रॉन्ग आपने बता दिया उसको आगे प्रोपेगेट होगा वो आगे चला जाएगा। तो आजकल क्या होता है, मिसलीडिंग कंसेप्ट इन द कंट्री चलता। आपने किसी ने गलत र्यूमर को उड़ा दिया और वो र्यूमर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल। जस्ट लाइक फॉर सी द मीडिया राइट नाउ, रॉन्ग थिंग्स को रॉन्ग नहीं कहेंगे, जस्ट मैनिपुलेटेड है, तो उससे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाता है। किसी को बदनाम करना है, किसी को राइज करना है, तो आजकल मीडिया में आपने गलत इन्फॉर्मेशन। तो क्वालिटी अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो क्वालिटी डिसीजन होगा। तो हमेशा कोशिश करें कि हम क्वालिटी कैसे डेवलप करें। तो कभी भी इंटीग्रेशन का मतलब वॉट एवर नॉलेज गेट यू कैन वेरीफाई इट, can't trust on everyone. Whatever data you got, was your responsibility to verify it whether it is wrong or right. तो आप कैसे वेरीफाई करते हैं, जो कुछ मैंने पढ़ाया, यू कैन वेरीफाई इट विद बुक, विद द हेल्प ऑफ बुक। Whatever I taught in the class, you can check in the book. From there you can verify, okay, sir was right or wrong. So it is very important to validate the things, the data. So data extraction, cleaning, transformation comprises the majority of work of building a data warehouse. A data warehouse is a place where you can collect various types of data as per requirement. You can retrieve the data, process it, and get the decision. Right? That's why this all are the reason. That's why the data pre-processing is play important role. Before going to take the decision, you have to pre-process the data. Without pre-process of data, you can't get the quality data, you can't take the quality decision. That's why the data pre-processing is very important. Okay, major task in data pre-processing. Now you are going to pre-process your data. What type of tasks are required to pre-process your data? The major task is the data cleaning. Data cleaning is a technique to clean your data. It is the element of data pre-processing. You have a data and now you have to clean the data before going to process. Cleaning of data, you have some data and one field is missing. Okay, you have some data and one field is missing. That means you have to search what was the entry here. That means you have to find out and fill that missing entry.
fill in the missing value. A smooth by noisy data. Your data is noisy, then you have to smooth. Whatever data, fault data, that can be replaced. अगर रॉन्ग डेटा आपके पास है, उस डेटा को आप चेक कीजिए, चेक करने के बाद उसको रिप्लेस कर दीजिए. कहीं पे आपका डेटा मिसिंग है, उस डेटा को पता करिए क्या डेटा था, उसको वहाँ पे फिल कर दीजिए आप. आइडेंटिफाई और रिमूव आउटलियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आउटलियर. व्हाट इज आउटलियर? There is an outlier in your data, and that play important role to take the wrong decision. Outlier क्या होता है कि हर डेटा से उसकी अलग प्रॉपर्टी है. मान लीजिए कि मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको, और इस क्लास में एक स्टूडेंट, एक टीचर आउटलियर, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, और वो इनसे बात कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, जब टीचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो द बिहेवियर ऑफ दैट स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. दैट मीन्स ही इज ए डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन द क्लास. So what is the solution to clean the class? That is the dirty class. You can say that is the dirty class, and from that dirty class you have to clean it. Means you can pick up that student and throw out the throw from the class. आप वहाँ से निकालिए, उनको फेंक दीजिए, तो then the class is clean. तो इसी तरह से आपके डेटा में एक आउटलियर होगा जो सबसे अलग उसका बिहेवियर होगा, उससे आपका डेटा का मैचिंग कहीं नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आउटलियर. तो उसको हम निकाल कर देखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यू परचेज सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, या यू परचेज सम फ्रूट फ्रॉम द मार्केट. इन दैट फ्रूट देयर इज वन आउटलियर, वन इज द डैमेज्ड. क्या करते हैं वो, दैट इज द आउटलियर, उसको निकाल कर फेंकते हैं. या शॉपकीपर है, वो भी स्कैन करते हैं डेटा को, जो खराब है उसमें से उसको निकाल कर फेंकते हैं. अदरवाइज ये खराब है तो और डेटा को डर्टी कर सकते हैं. तो डेटा क्लीनिंग का है कि जो भी आउटलियर से आपके डेटा में जो सब डेटा के प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, सो यू कैन पिक अप इट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर डेटा. दैट मीन्स योर डेटा इज क्लीन. ओके, so this is the one step that is taken into consideration while pre-processing the data, that is the data cleaning. Another type of pre-process, data integration. Data integration of multiple data and above one. Data integration. Multiple data are placed in different places. आपके पास जो डेटा है different places में है, तो उन डेटा को क्या करते हैं, हम एक जगह इंटीग्रेट कर देते हैं, एक डेटाबेस में कर देते हैं. या फाइल है, that all are combined together. That is the integration of multiple databases. Data comes और फाइल. वो डेटा जब हम एक जगह कर देंगे तो एरर आने का चांस कम हो जाता है. उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. यू हैव ए टू फाइल, वन इज एक्सेल, अनदर फाइल इन वर्ड, अनदर इन द पावरपॉइंट. सो देयर इज ए डिफरेंस, एंड यू वांट टू ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म. मींस यू ट्रांसफर इनटू एक्सेल और पावरपॉइंट. सो यू हैव टू ट्रांसफर द फॉर्मेट ऑफ फाइल इन वन. That is also the task under the pre-processing. आपने डेटा डाउनलोड किया, एक फाइल एक्सेल में है, वो वेदर डेटा डाउन किया, एक्सेल में है, एक डेटा आपको अदर सॉफ्टवेयर में है, फॉर्मेट अलग अलग है, तो उसके फॉर्मेट को आपको चेंज करना होगा, एक फॉर्मेट में लाना होगा. दैट इज नोन एज द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन एंड एप्लीकेशन. अनदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल की बात किया. नॉर्मलाइजेशन है कि आपका जो डेटा लेना है 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना है. तो डेटा नॉर्मलाइजेशन यानी कि न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो 0.002, तो किसी में 0.0045 4 डेसिमल पॉइंट, किसी में 2 डेसिमल पॉइंट, किसी में 1 है. उसको नॉर्मलाइज का मतलब कि 2 डेसिमल पॉइंट तक सबको डेटा को लाना है, या डेसिमल से 4 डिजिट तक लाना है आपको, या आपको पास 0.00 है तो आपको 0 हटाकर 0.2 और लास्ट में 10 और कर दिया. यानी कि आपने डेटा को नॉर्मलाइज किया या समराइजेशन किया, सैंपल निकाल लिया आपने. तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन. Another kind of process, data reduction. यानी obtain reduce representation in volume but produce the same or similar analytical feature. And you have to reduce the data. You have the size of data is huge, the space is not enough there to store. That means you have to reduce the data, but the results should not be affected. Some element will be useless,
So you can remove that some useless element from your data, then your data will be reduced, so less amount of memory are required to store. So data reduction is also the task taken into consideration while data is reprocessed. Another data discretizations is the part of data reduction, but with particular importance, especially for numerical data. आप उसको उस पार्ट को आपने रिड्यूस किया, यानी कि 4 डिजिट का था, आपको उसको थोड़ा सा कम डिजिट कर दिया, 3 डिजिट और 4 डिजिट. तो स्पेशली दैट इज आल्सो कम अंडर द डेटा रिडक्शन, बट देन विथ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस especially for the numerical data. In this one, only numerical data are taken into the consideration, especially for reducing the data up to 10 डिजिट. आप देखते हैं कभी आप करते हैं कैलकुलेशंस, तो आपको पॉइंट के बाद 10 डिजिट आता है, 5 डिजिट आता है, 4, तो आप उसको क्या करते हैं, राउंड अप कर लेते हैं या ट्रंकेट कर देते हैं. राउंड अप मतलब 5 आया, अब 3 डिजिट 1 बढ़ा देंगे, अब 4 है तो कम कर देंगे. और ट्रांजेक्शन ट्रंकेशंस में क्या होता है, वो डेटा को हम इधर उधर नहीं बढ़ाते ना घटाते हैं, जितना है वहीं पे हम रिलीज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज 2.0024 and another data 0.00245. If you are truncating this data, so you up to 4 digits, 1, 2, 3, 4 digits, so 2.002. This is truncation. But round up, you can write 1. In round up, you can take one data, but in truncations, you can remove. So special considerations taken into considerations while data is discretizations. So these are the major tasks taken into considerations while pre-processing the data. So see here the form of data pre-processing. So data cleaning, data integrations, data transformations, and data. See here, this is the water, and this is the dirty water. There is a mud here. So how can you clean it? You can put a chlorine something, it will hide the. आजकल आपके पास वाटर आते हैं दिल्ली में, तो वो वाटर क्या है, डर्टी है, क्लीन नहीं है. उसके लिए क्या केमिकल इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, और फिर उस डेटा को क्लीन करते हैं, और क्लीन करने बाद पीने का फॉर्मूला. जैसे आप ग्राउंड वाटर निकालते हैं, उसको आप पी नहीं सकते, लेकिन आप जो दिल्ली में पानी पीते हैं वही पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं. पानी आप दिल्ली पीते हैं या बिस्लरी का पीते हैं, वो कैसा पानी है, ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड से लिया, आपके पास प्योरीफायर है, आपने मशीन लगाया, वो मशीन क्या करता है, वो डेटा को प्रोसेस करता है और उसको क्लीन करता है, जो भी एलिमेंट्स उसको निकाल देता है. यदि आप एक्वागार्ड और क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्वागार्ड और क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, आरओ है, जो आपके घर पे वाटर आ रहा था, जो इस्तेमाल करते हैं उसको पीने के लिए ला रहे हैं, यानी उस डेटा को आपने क्लीन किया और क्लीन करके उसको इस्तेमाल किया. उसी तरह से जो डेटा आता है आपके पास, उस डेटा को आप क्लीन करके तो फिर एक और भी तरीका होता है, उसमें से मशीन नहीं है तो आप उसको बॉयल करेंगे. जो बॉयल करेंगे आप, उसमें से जो भी आपके पास इंसेक्ट होंगे, दैट ऑल विल बी. तो कभी कभी आपको क्लीन वाटर भी है, उसके बाद में आप बॉयल करके उसको, फिर आपके पास डेटा इंटीग्रेशन, एक डेटा का फॉर्मेट अलग है, इस डेटा का फॉर्मेट अलग है, और को लाया आपने एक जगह कंबाइन किया, यानी कि एक फॉर्मेट में लाना होगा, एक फॉर्मेट लाया आपने. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे है 2 है, ये पॉइंट वाट 2 है, 32 है, तो आपने क्या किया, पॉइंट 0 लगा दिया, कर दिया, यहाँ पे 30, यानी ये डिजिट का है आपका, ये 2 डिजिट का है. तो आपने इसको क्या किया है, इसको 2 डिजिट बनाना है, तो पॉइंट और 0 कर दिया, ये 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट, यानी डेसिमल से पहले आपको 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट. इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा रिडक्शन, आपके पास ये रो है, तो आपने क्या किया कि 2 रो इधर हटा दिया, 2 आपने इधर से कॉलम हटाया और 1 रो एक यूजलेस है, तो आपका एक नया फॉर्म बनकर आता है. तो इस तरीके से हम डेटा को रिडक्ट कर देते हैं. अब सी इन डिटेल्स द डेटा क्लीनिंग. So important
data cleaning is one of the three biggest problems in the data warehouse. This is the major problem of data cleaning in the big data warehouse. Data warehouse में huge amount of data है, अब उस data को clean करना है, clean क्योंकि आपको जरूरत है data की. So that is given by the statement by Carl Kimber. उन्होंने कहा this is the statement given by a scientist. Data cleaning is one of the three biggest problem in the data warehouse. Data cleaning is the number one problem in the data warehouse. DCI सर्वे, एक DCI का सर्वे था, उन्होंने कहा कि डेटा क्लीनिंग इज द नंबर वन प्रॉब्लम इन द डेटा warehouse. So data cleaning task, fill in the missing value, identify outliers and smooth out noise data. जो हमने अभी आपको डिस्कस करके बताया कि कैसे हम नॉइजेस को रिमूव करेंगे, हाउ टू फिल द मिसिंग वैल्यू. जैसे अभी आजकल एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं आप, तो कहीं पे मैंडेटरी फील्ड होता है और कहीं पे नॉन मैंडेटरी. तो आप जब फॉर्म भरते हैं तो जो मैंडेटरी नहीं होता आप उसको छोड़ देते हैं. और कभी फ्यूचर में आकर उस डेटा की जरूरत हो, वहाँ पे क्या दिखाएगा, मिसिंग दिखाएगा. तो दैट इज नॉट द आप कहेंगे क्लीन डेटा, दैट इज द डर्टी डेटा. मीन्स द ऑल कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर. समटाइम्स यू मिसिंग द एड्रेस. When you are going to prepare the result, at that time marks is only required, address is not required, category is required. So category and marks is there to prepare the result, but address is not required there. But somewhere you want to send the intimation letter, you got success in the, so there that is required, and there the address is not complete there. That is the dirt. So that should be filled up. तो एडमिशन के बाद भी आपके डेटा को फिलअप कराया जाता है जहाँ जहाँ मिसिंग. तो मिसिंग डेटा को फिलअप किया, नहीं डेटा को क्लीन किया. तो नॉइजेस था, रॉन्ग आपने डेटा बर्थ दे दिया. टाइपिंग करते वक्त आपको 95 था और 96 लिख दिया, दैट इज द रॉन्ग. सो आफ्टर द एडमिशन दैट मे बी करेक्टेड द राइट वन. आइडेंटिफाई आउटलायर एंड स्मूथ वैल्यू. करेक्ट इनकंसिस्टेंट डेटा. आपने 2 बार फॉर्म भरा, दोनों में एक जगह गलत एड्रेस दे दिया. तो डे टू डे, डे बाई डे, whenever your address is changed, you can update, you can modify the record, that is you can correct the address or whatever entry changed in the database. Resolve the redundancy caused by the data integrations. When you are going to integrate the data, after the integrations may be data duplicate, so you can remove the duplicate data from your database. So in this way you can clean your data. So missing data, various steps are taken into consideration while solving the problem of missing data. Data is not always available. Data is not always available for processing. For example, many tuples have no record value for the several items. कोई आपने रिकॉर्ड लिखा आपने, और उस रिकॉर्ड में कई जगह पे उसकी वैल्यू नहीं होती. जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, स्टूडेंट्स का नाम दिया, एड्रेस मिसिंग है, जेंडर मिसिंग है और कुछ और मिसिंग है. तो मिसिंग डेटा में भी ड्यू टू. अब मिसिंग डेटा क्यों होता है? इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग. आपने क्या किया, आपने इंटर तो सही किया, जैसे ही सेव किया वो डेटा आपको आया कि सक्सेसफुल सेव हो गया, लेकिन एक्चुअली वो डेटा सेव नहीं हुआ. तो माल फंक्शनिंग द डिवाइस. इनकंसिस्टेंट विथ अदर रिकॉर्डेड डेटा एंड दस डिलीटेड. आपने डेटा को रिकॉर्ड किया और किसी थर्ड आदमी ने उस डेटा को डिलीट कर दिया, तो वहां पे आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. डेटा नॉट इंटर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग. आपने कहा कोई बात इसको बाद में कर देंगे, अभी आप फिलअप करते हैं और कहते हैं कि कलम के बाद में सोच के भरूंगा मैं, ठीक है, और करते आगे बढ़ गए और आपके माइंड से उतर गया. ऐसा होता है जब फॉर्म भरते गए आप और लास्ट में कहा ये कलम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको सोच कर भरेंगे, और बाकी भरा वो माइंड से उतर गया, आपने सबमिट कर दिया, तो जो इम्पोर्टेंट डेटा आपने मिस कर दिया, यानी कि मिस अंडरस्टैंडिंग, या किसी ने कहा कि यार इसकी जरूरत नहीं है, जब वो इम्पोर्टेंट. तो सर्टेन डेटा मे नॉट बी कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री. जब एंट्री कर रहे थे आप तो आपने समझा कि डेटा उतना इम्पोर्टेंट
नहीं है, लेकिन बाद में उस डेटा का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, फिर उस स्टूडेंट को बुलाएंगे या जिसका भी डेटा है उसको कंप्लीट कराएंगे। तो नॉट रजिस्टर हिस्ट्री और चेंज ऑफ द डेटा, मिसिंग डेटा may need to be included। मिसिंग डेटा जो भी आपके पास है उससे आपको कभी डिसीजन लेना होगा, कभी जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल करने में लाना होगा आपको, इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, गॉड ने जो डेटा आपके अंदर दिया है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आप लोग सोच नहीं सकते कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स आपके बॉडी में है दैट इज नॉट एक्टिव। आपने सुना होगा बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी यानी कुछ ब्रेन यहाँ से आपको निकालते हैं, दैट इज यूजलेस, नेवर यूज्ड, और उसी को निकालकर आपको बाईपास सर्जरी करें। वो स्पेशल वहाँ पर डेटा रखा हुआ, वो यूजलेस है, यूज में नहीं है, लेकिन जब रिकॉर्ड में जरूरत, जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो कर लेंगे। इसलिए कभी कभी आप जो डेटा रखते हैं घर पे वो कहते हैं यूजलेस है, लेकिन कभी अचानक ऐसा मौका आता है उसकी आपकी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आप रखे रहेंगे तो इस्तेमाल कर लेंगे, और नहीं रखे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। कभी कभी आप लोगों को लाइफ में आता होगा, ऐसा सीन आया कभी कि आपने सोचा कि ये किसी का इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? मोबाइल से नंबर लीक कर देते हैं, बाद में जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी कहा यार बेकार है, कभी कभी इतना अच्छे दोस्त नहीं है, और अचानक 2 साल बाद याद है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनसे बात करनी है, तब उसकी जरूरत होती है। तो आप क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड को रखे रहते हैं। कोई बात है, कहीं ना कहीं डायरी में लिख देते हैं। इतना वीआईपी नहीं है, लेकिन आज मान लीजिए क्या नाम है आपका, फारूक साहब। आज फारूक साहब आपके क्लासमेट है, तो आप लोगों ने नंबर ही दे रहे, भाई हमारा नंबर लिख लो, कोई बात करेंगे। आप क्या छोड़ो यार, नंबर क्या लेना। और 1 साल बाद ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए। अब आप सोचे यार मेरे क्लासमेट में थे, अब इनसे बात किया जाए, और उस वक्त आप इनका डेटा लेंगे तो नहीं मिलेगा। उस वक्त आप डेटा आप लेना चाहेंगे तो चाहकर भी आपसे नहीं मिल पाएंगे। फोन पे नहीं मिलेगा आपको, फेसबुक पे नहीं मिलेंगे, ऐड भी नहीं करेंगे। तो डेटा का इम्पोर्टेंस कितना है ये हमको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपके दोस्त होंगे, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन एक वक्त आने के बाद इतना अवेलेबल आदमी हो जाता है आप सोच नहीं सकते। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, शाहरुख खान यहीं कपड़ा हुआ है, पता है आप लोग को। शाहरुख खान यहाँ पे उसका यहाँ पे अटेंडेंस शॉर्ट हो गया, उसको एग्जाम में अपियर होने नहीं दिया गया, और आज देखिए किंग ऑफ बॉलीवुड, जा सकते हैं या नहीं कर सकते। और आज आप यहाँ चाहिए मिलने के टाइम मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कोई नहीं जानता है किसी के बारे में, जो आपके पास है उसका इम्पोर्टेंस उस वक्त समझ में आता है जब वो आपके पास से चला जाता है। और जब वो स्टार बन के निकल के आता है सामने, तो आप गर्व से कहते हैं देखो ये मेरा क्लासमेट है कि नहीं। उस वक्त आप कहते हैं यार ये मेरे क्लास में है। बहुत ऐसे, अभी मैं आपको स्टोरी बताऊं। एक मेरी स्टूडेंट है IAS टॉपर, इन्हें दिल्ली जब मेरे पास आई हमारे चैम्बर में PhD करने के लिए, उनका PhD में दाखिला नहीं हुआ। अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, वो रोने लगी। अच्छा गर्ल्स बुरा मत मानिए कि रोने की आदत बहुत जल्दी है, हो जाती है, वही बात हो। इमोशनल गर्ल्स बहुत इमोशनल होती है, बॉयज भी इमोशनल होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ड्रामा नहीं कर सकते। can't say this word. देखिए all are the human being, all having the capabilities to do something। इंसान में भी एक इमोशनल ऐसी चीज़ है, इमोशन बहुत होता है इंसान में, हर में इमोशन होता है, किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। इत्तेफाक से इमोशन जो सबसे ज़्यादा गर्ल्स में, राइट, ये इसको कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये कुदरत ने, ऊपर वाले ने एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दिया है, वो सब में होता है, किसी में ज़्यादा है और किसी में कम होता है। अब देखिए कई दफे गर्ल्स स्ट्रांग होती है, अगर वो अपने जिद पे आ जाए तो फिर किसी के नहीं सुनेगी। जब बॉयज में हर में होते हैं। वो लड़की रोने लगी, और मैंने कहा कि क्या किया जाए, आदत नहीं, हमने उस पर और बोल दिया तुम्हारे बस का नहीं है PhD करना। अब और रोने लगी, अब जाहिर सी बात, को दुखी हो और उस पर और कुछ बोल दीजिए तो और दुखी हो जाए। तो फिर मैंने कहा तुम IAS ऑफिसर बनो, तो उसके पास सर जब PhD में नहीं हो रहा है तो मैं IAS ऑफिसर कैसे बन पाऊंगी। हमने कहा कि मैंने तुम्हें क्वालिटी देखा है,
और हर टीचर अपने स्टूडेंट्स की क्वालिटी के बारे में जानता है, और हर टीचर ये जानता है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सबको पता होता है। फिर भी हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। मैं बहुत ही फ्रेंक आदमी हूँ और फ्रेंक बात करता हूँ, अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि जो कुछ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको नहीं समझ में आए तो 100 टाइम्स क्वेश्चन कीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं आता होगा ना तो मैं बताऊंगा भैया मुझे नहीं आ रहा है, कल को मैं पढ़ कर आऊंगा और आपको बता दूंगा, गलत नहीं बताऊंगा। ये ऑनेस्टी होनी चाहिए टीचिंग में। मैंने उससे कहा कि तुम पीएचडी नहीं कर सकती, तुम आईएएस बन सकती। कह रहा में सर। फिर उसके बाद उसको ऐसा लगा कि मैं बन सकती हूँ आईएएस। हाँ, फिर वाई नॉट। 3 काम करना होगा आपको, बस ये 3 काम कर लीजिएगा, आप आईएएस बन जाएंगे, और नहीं करेंगी तो कभी नहीं बन पाएंगे। बताइए सर। मैं करूँगी। हम जब पढ़ना, खाना और सोना फॉर 1 ईयर ओनली। 1 साल आपको खाना खाना है, सोना है और पढ़ना है, और कोई काम नहीं करना। क्योंकि आईएएस के लिए आपको मेहनत चाहिए, ब्रेन की जरूरत नहीं है। 1 साल और कीजिए, 2 साल से ज़्यादा नहीं, और ये काम करिए। ठीक है सर, मैं अब जा रही हूँ और मैं करूँगी। उस बच्ची ने इतना मेहनत किया। एक दिन होली के टाइम पे मैंने फ़ोन किया, वो लड़की थी करौल बात, उसका नाम अभी देख लीजिएगा, दिल्ली में डीएम है, सेंट्रल दिल्ली में अगर कोई है, सेंट्रल दिल्ली के आसमा जैन, कभी मुलाकात होगी तो मेरा नाम पूछिएगा उससे। सेंट्रल दिल्ली में डीएम, यहाँ पे कमिश्नर बोलते हैं दिल्ली, आप जानते हैं आसमा जैन। उसने होली के दिन जब मैंने फ़ोन किया तो हमने कहा बेटा मुबारक हो। तो मैंने कहा क्या कर रहा हो अभी? सर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कहा कि पढ़ाई आज होली के दिन जो हर आदमी इंजॉय करता है, तो पढ़ाई कर रही थी। हमने कहा अब तुम आईएएस टॉप कर जाओ। पहले तो था कि तुम आईएएस बन जाओगी, मैंने कहा कि अब तुम आईएएस टॉप करोगे। उसके बाद हमने कहा थोड़ा सा इंजॉय कर लो बेटा, फेस्टिवल है, थोड़ा घूमना चाहिए। उसका पीटी में हो गया, फोन आया, पीटी में हो गया। फिर उसका मेहनत उसी तरह से लगा, बस खाना सोना पढ़ना था उसका। फिर पीटी में हुआ। फिर आपको दिवाली आया, मैंने कहा चलो दिवाली पे फ़ोन करते हैं। फिर मैं कहा क्या कर रहा हो? तो पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कहा भैया तो तब करना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। फाइनली जब उसका रिटर्न में हो गया तो मैं सो रहा था, सुबह 7 बजे सुबह उसका फ़ोन आया मेरे पास कि सर टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए। मुझे सुबह 7 बजे उठाया, कोई कितना बुरा लगता है, हम इस वक्त फ़ोन कर दिया, देखा आसमान का कोई कभी बात है, सर टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया देखा, फ्रंट में तो आईएएस टॉपर, वुमेन में फर्स्ट और जनरल में 7 पोजीशन है, 7 पोजीशंस एंड फर्स्ट पोजीशन इन वुमेन। फिर आई उसको बिहार कैडर मिला, गया गई, फिर उसका डिप्यूटेशन पे। तो कभी कभी क्या होता है, अभी आप देखिएगा दिल्ली गवर्नमेंट का साइट ओपन करके देखिए, लास्ट में उसका पीएचडी जानने से ही लिखा है, बाद में उसका पीएचडी जानने से ही। तो ये कभी कभी होता है, कब इसकी बात आपको अच्छी लग जाए। ये एक मोटिवेशनल लेक्चर कहते हैं इसको, कि हर इंसान में क्वालिटी होती है, हर स्टूडेंट उस क्वालिटी को नहीं पहचान पाता, उस क्वालिटी को पहचानने के लिए बताना पड़ता है। तो मेरे इसी एज में इतने आईएएस और बहुत अच्छे पोस्ट में, टॉप पोस्ट हमारे स्टूडेंट हैं। आपका ये गुड़गांव का जो डीसीपी, वो मेरा स्टूडेंट है, उसको भी मैंने पढ़ाया था और वो भी आईएएस बन गया। तो आजकल वहाँ पर नहीं है, इस वक्त कहीं और चला गया, हरियाणा में, हरियाणा कैडर है। तो बहुत स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। तो कभी क्या होता है, किसका वर्ड मोटिवेशन किसको काम आ जाए तो कोई नहीं जानता। आज की डेट में वो इतनी बिजी हो गए, अगर डीएम बन जाए, जो आपको प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिल जाए तो कोई नहीं जानता कि कौन क्या कर सकता है। ये हकीकत है। इसलिए हर चीज़ का जो हमें बात करें डेटा की, तो क्वालिटी डेटा, यानी कौन सा डेटा आपको इम्पोर्टेंट है, कौन सा डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो डेटा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है इस वक्त, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज क्लास का टॉपर है, आप सब उसको लाइक करते हैं, उसको सब चाय पिलाते हैं, चलो कम से कम नोट्स दे देगा, पढ़ा देगा। और एक वैसा वक्त आएगा कि वो फेलियर हो जाएगा। जब फेलियर हो जाएगा ना, तो आप ही के दोस्त उसे कटने लगेंगे, यार वो आ रहा है चाय पीने के लिए, कहेगा मैं उसको चाय पिलाऊंगा। ये टेम्पटेशंस और ये हकीकत है लाइफ पे। तो लाइफ पे कैसे कैसे मोड़ आता है, शायद आपको एहसास नहीं होगा। जब उस वक्त एहसास होता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह से ये डेटा है, कभी कभी इस डेटा को आप इग्नोर करते हैं ना, और वही डेटा आपके
फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी इंसान को आप निगेटिव मत सोचिए कि ये बहुत बेकार है। हर इंसान अपने आप में बहुत ही एक अच्छा इंसान है। सबको रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आप रेस्पेक्ट चाहते हैं दूसरों से, तो दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से जो डेटा आपके पास है, जो भी डेटा आ रहा है, हर डेटा का अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उस डेटा को उसी तरह से आपको हैंडल करना है। तो जरूरी नहीं है कि जो आज आपने डेटा कलेक्ट किया है, बहुत दफे ऐसा होता है आप रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, या लास्ट में जाकर फेलियर हो जाता है। तो आपका मेहनत बेकार नहीं होगा, हो सकता है वो डेटा कहीं और इस्तेमाल हो जाए आपको। तो इसीलिए कोई भी आप काम करते हैं तो ये नहीं कहिए कि हम फेलियर इज ए लीडर ऑफ सक्सेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, मिसिंग डेटा को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू हैंडल द मिसिंग। अब आपने मिसिंग डेटा मिल गया और उसको हैंडल करना, यानी कि आप कैसे हैंडल करेंगे। इग्नोर द टपल यूजुअली डन व्हेन क्लास लेवल इज। अब क्लास लेवल पे अगर डेटा आपके पास है, तो क्लास लेवल पे तो यू कैन इग्नोर द टपल्स। टपल्स यानी कि रो, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। द टास्क इन क्लासिफिकेशन नॉट डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यू यूज आर। और वो टपल है, परसेंटेज निकाल रहे हैं और उसकी उसमें नहीं है। जैसे आपको कहते हैं आपने एग्जाम दिया, एक कंपल्सरी पेपर है, जैसे उर्दू है, उर्दू इज नॉट कंसीडर इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। डेटा रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। या और भी कुछ ऑप्शनल पेपर होते हैं जिसको आप वेटेज दी देते हैं, तो वहां पे तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट है कि ये पेपर आपको पढ़े होना चाहिए, तब वहां पर उसकी जरूरत होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा को रेंज करके आप रख देंगे, ये कभी ना कभी इस्तेमाल होगा। इसीलिए आपको मार्कशीट पे आपको सीबीएसई का रिजल्ट आया है, देखा होगा, बहुत सारे कहते हैं 6 पेपर दे दिया, आउट ऑफ 6 ओनली परसेंटेज कैलकुलेट बेस्ड ऑन 5 पेपर, 5 बेस्ट पेपर। ऐसा भी होता है कंडीशन कहीं कहीं, सारे रिकॉर्ड तो है लेकिन उसमें 5 बेस्ट पेपर का परसेंटेज निकाल दें, या और भी कोई कंडीशन वहाँ पे लगा देते हैं। तो फिल इन द मिसिंग वैल्यू मैन्युअली और टीडीएस प्लस इन, या तो आप मैन्युअली फिलअप करिए और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी कैलकुलेशन जरूरत है तो 0 फिलअप कर दीजिए, या कुछ भी फिलअप कर। कहीं कहीं फॉर्म फिलअप करते हैं तो मैंडेटरी होता है, देखिए आप वहाँ पे एन लिख देते, नॉट एप्लीकेबल, तो काम चल जाएगा। नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। स्टिल इन ऑटोमेटिकली फ्री एक ग्लोबल कांस्टेंट या अननोन, यानी पहले जो बात किया हमने मालूम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल या नॉट अलाउड, जो भी आपको फिलअप कर देना है। ऑटोमेटिक कमांड दिया आपने, और जहां जहां इस तरह का डेटा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिडरेशन में नहीं लेना है, तो आप उसको यानी इग्नोर किया लेकिन फिलअप किया, कंप्लीट किया। So attribute mean of all samples belonging to the same class matter the most common value influence based such as decision formula on decision। डिसीजन ट्री आपको नहीं देखा, आप डिसीजन ट्री का बनाते हैं तो आपको डिसीजन ट्री में मान लीजिए कि आपको जामिया से कनाट प्लेस जाना है, आपको डिसीजन लेना, यहाँ से जाएंगे जुलेना जाने के बाद 3 रोड निकल, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सीधा। अब वहां पे आपको डिसीजन लेना है कि हमें फ्रंट से जाना है, लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है, तो डिसीजन लेना है आपको। अब आपने डिसीजन लिया जो शॉर्टेस्ट है और पता चला वहां आगे जाते जाम बहुत ही, तो अब वहां सोचे हमने गलत डिसीजन ले लिया, काश हम महारानी बाग से जाते और पता चला वहां फ्री रोड है, तो उससे पहले पहुंच जाते, तो ये डिसीजन बनता है। यस, लास्ट फाइनली आपका नाम प्लेस, तो एक आपका रूट बन गया और वहां पे डिसीजन है। तो हम बेसिस और फार्मूला होते हैं जिसके जरिए हम डिसीजन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री बना आपका। फिर आगे जाएंगे फिर 2-3 रोड होगा, फिर उस तरह क्रॉस करते हुए आप ले जाएंगे, वहाँ डिसीजन लेते हैं। तो हमें डेटा की जरूरत है और आप हाँ किसी, हाँ बिल्कुल, दैट इज ऑल डेटा, यानी बहुत सारे डेटा आपके पास होंगे,
उस डेटा को आप समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद उसको फिल्टरिंग करेंगे, या तो आपको उसको क्लस्टरिंग बनाएंगे, ग्रुप वाइज करेंगे इस एज ग्रुप पे क्या है। तो क्लस्टरिंग इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। यानी मान लीजिए पहले वुमेन एम्पावरमेंट छोड़िए, पहले पूरे ह्यूमन बींग ले लिए, तो एक तो कैटेगरी बनाया मेल और फीमेल, एक बन गया, ये भी प्री प्रोसेस हो। और फीमेल में आपको एलिमेंट देना होगा कि फीमेल में क्या क्या फैक्टर देना है हमें उसको जज करने के लिए, वो क्राइटेरिया करेंगे, उसमें से कुछ डेटा आपका फिल्टर आउट हो जाएगा, वहाँ से डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। फिर उस तरह से क्राइटेरिया बनाते बनाते कहीं कहीं पे जो आपने डेटा लिया है वहाँ पे डेटा एंट्री तो किया था आपका, लेकिन वो डेटा आपको एक्चुअली में आया नहीं। वो डेटा कैसे लाएंगे, वो उसको कहते हैं मिसिंग डेटा। डेटा कलेक्ट किया आपने कहीं से कलेक्ट कर लिया और बाद में पता चला कहीं कहीं पे एंट्री मिसिंग है, जो डेटा लिया था वो नहीं आया, तो फिर आप उसको फिलअप करना पड़ेगा पूछकर या आसपास को देखकर आपको कुछ उसमें फिलअप करना। तो ये डेटा प्री प्रोसेस हर एक जगह इस्तेमाल। तो क्लस्टरिंग भी इज ऑल्सो द कमांडर का डेटा। जैसे आप सेंसस आजकल चल रहे हैं, अभी एक नया प्रॉब्लम आया था यूपीए गवर्नमेंट कि हम सेंसस कराएंगे तो रिलीजन बेस्ड आया था ना, कास्ट बेस्ड कराएंगे, है ना, हालांकि उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब सेंसस करने जाएंगे तो अपने कास्ट को नहीं बताएंगे, है ना, अपने रिलीजन को नहीं बताएंगे, तो दैट इज नॉट द क्वालिटी। तब आप डिसीजन लेंगे कि इस कम्युनिटी के लोग इतने हैं, इस कम्युनिटी के इतने लोग हैं। तो प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पे रॉन्ग फैक्ट आए, हकीकत में आप जाकर देखेंगे तो नहीं है। तो ये हकीकत प्री प्रोसेस वहाँ भी इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो आप इस तरह के डेटा को हैंडल किया। अब नॉइजी डेटा को कैसे रिमूव करेंगे आप, जो डेटा आपका नॉइजी, यानी नॉइजी डेटा रैंडम एरर और वेरिएबल वेरियस इन ए मेजर वेरिएबल इनकरेक्ट एट्रीब्यूट्स व्हेन मेड ड्यू टू फॉल्टी। इसको हमने डिस्कस किया था अभी कि नॉइजी डेटा कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया टेम्परेचर प्रेशर मेजर करने के और वो फॉल्टी है, देखिए आप उसमें रिजल्ट निकाल रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो गलत आ रहा है। अब वो कैसे चेक करेंगे आप कि हमारा डेटा में नॉइज है या नहीं। कुछ आइडिया है, मान लिया कि आपने जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो मशीन फॉल्टी है, बैरोमीटर आपने लिया या जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया आपने मेजर करने के लिए, आपने डेटा मेजर किया, आपको रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, उसको मेजर किया, आपने डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, पूरे दिन डेटा रिकॉर्ड किया। अब आप उसको रिकॉर्ड करना प्रोसेस किया, तो आपको पता नहीं चला कि डेटा फॉल्टी है, नॉइजेज है, तो कैसे करेंगे आप चेक। आइडिया है, एक बार सेम सिचुएशन में इसको कहते हैं रिसर्च में रिजल्ट को कंपेयर करना। एक मशीन से लिया और उसमें क्या होता है कि एरर एस्टिमेशन, पहले उस डिवाइस का एरर भी निकालते हैं कि क्या इसके करने से एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। या दूसरे आप मशीन लेंगे, तीसरा मशीन लेंगे, तो 3 मशीन को रीडिंग लेने के बाद 2 का सेम आ रहा है, तीसरे का अलग आ रहा है, या तीनों का सेम आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि नहीं ये मशीन ठीक है, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट बदला था। तो जो 2 डेटा था, अगर 2 डेटा को आपको एज्यूम करना हो, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल लाइफ आप सब लोग पेटी कराते होंगे, तो केसेस 3 लोगों के पास जाता है, तीनों का रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो गो फॉर द वाइवा। अगर एक का भी निगेटिव रिपोर्ट आ गया तो अब उसमें शक हो गया, किसका मतलब ये दोनों जो चेक किया है वो गलत किया सही किया है, तो अब वो रिपोर्ट फोर्थ के पास जाता है ना, ऐसा ही होता है ना, फोर्थ के पास। अगर उसने कहा कि सही है तो थर्ड एग्जामिनर को इग्नोर कर दिया, इनको कुछ नहीं आता, इन्होंने गलत चेक किया। अगर उसने कहा कि गलत है तो फिर दोनों का रिपोर्ट को खत्म कर देते हैं, भैया ये लोग गलत थे, अब दोबारा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये है कि डेटा को हमें चेक करना है कि जो डेटा है तो ये डेटा गलत हुआ है क्यों, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट को चेक करना होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को आपको रिप्लेस करना होगा। या डेटा एंट्री प्रॉब्लम, आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को रखा हुआ है और डेटा बार बार जो आपका गलत रन कर रहा है, उसको कैसे चेक करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे और बाद में उस इंसान को हटाएंगे, दूसरे से इंटर कराएंगे, तुम करो इंटर, और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो एरर आपको ऐसा ही निकल जाएगा कि एंट्री के लेवल पे एरर कहाँ पे था और कहाँ पे
नहीं था। इसी तरह से टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है, इस तरह का डेटा है जो आप मानिए तो विंडोज नहीं है, करेक्टर इंटरफेस है, तो ग्राफिक्स डेटा इंटर ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज द फॉल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी आपको स्कैनर नहीं है, इमेज डेटा को इंटर कराना है, तो कीबोर्ड से तो इमेज डेटा इंटर नहीं हो सकता, राइट। तो क्या है आपका टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, तो टेक्नोलॉजी का आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, या उस इमेज के जगह आप 0 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्म में। फिर इनकंसिस्टेंसी इन नेमिंग कन्वेंशन, आपने जो नाम लिखा और इसमें आपको इनकंसिस्टेंट, एक जगह कुछ और नाम रख रहे हैं और दूसरे डेटा एंट्री पे कुछ और नाम रख रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंट, तो ये सारे नॉइजेज हो जाते हैं। तो अगर डेटा प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स डेटा डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपने एक इंटरयास कराया, दो लोगों ने सेम डेटा को इंटर कर दिया, तो डेटा का डुप्लीकेशन हो जाता है, इनकम्प्लीट डेटा है, इनकंसिस्टेंट, ये सारे डेटा होगा। विच ऑल आर द नॉइजी डेटा, इफ डेटा इज ए नॉइजी देन द क्वालिटी डेटा विल नॉट बी, और डेटा में नॉइज है तो उस डेटा को हम क्वालिटी डेटा नहीं कर सकते, डेटा को क्वालिटी उसी कर सकते हैं, ये सारे चीज़ आपका नॉइजी डेटा ना हो, इनकम्प्लीट डेटा ना हो, इनकंसिस्टेंसी ना हो डेटा में, तो आप उस डेटा को एक्यूरेट डेटा। हाउ टू हैंडल द नॉइजी डेटा, अब आपके पास कोई डेटा नॉइजी डेटा आ गया, ठीक है, अब उस नॉइजी डेटा को कैसे हैंडल करेंगे। एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं बिनिंग एल्गोरिथम, बिनिंग एल्गोरिथम यानी डेटा को स्मूथ करना, यानी फर्स्ट सॉर्ट द डेटा, उस डेटा को नॉइज रिमूव करना है आपको, उस डेटा को पहले सॉर्ट करेंगे, राइट। सॉर्ट करने के बाद उसको पार्टीशन इनटू इक्वल फ्रीक्वेंसी करेंगे, डेटा को सॉर्ट किया, मान लीजिए कि आपके पास डेटा रहा 2 4 8 1 3 9 12, you have collected the data, you have the data. Now you have to sort this data 1 2 3 4 8 9 12 डेटा। अब इस डेटा को आप डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी, टू फ्रीक्वेंसी इक्वल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इक्वल फ्रीक्वेंसी मीन्स अब ये कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 डेटा, अब इक्वल फ्रीक्वेंसी में करना है, तो मान लीजिए दो दे दिया आपने दो, तो ये हमारा मेथड फेल हो जाएगा, इक्वल फ्रीक्वेंसी में ये इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर यहाँ पे डेटा 21 होता तो इक्वल फ्रीक्वेंसी हो जाता आपको, यानी कि आप 3 का कर दीजिए 3 2 हो जाता, यानी इक्वल फ्रीक्वेंसी करना, तो आप 3 का करें तो शायद हो जाएगा 2 2 4 2 6 2, अब इक्वल फ्रीक्वेंसी इसमें ओके। देन वन कैन स्मूथ बाय बीन मीन, अब इसका जो है आपका बीन मीन निकालना है, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो बीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, या बीन बाउंड्री, इसके करके हम वो डेटा का नॉइज को रिमूव करते हैं, जो इसमें नहीं होगा वो रिमूव हो जाएगा। और दूसरा मेथड है रिग्रेशन, ये भी इसका टूल है, रिग्रेशन के जरिए हम क्या करते हैं अपने डेटा से नॉइजेस को रिमूव करते हैं, जो उस रिग्रेशन लाइन में नहीं आ रहा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे स्मूथ बाय फिटिंग द डेटा इनटू द रिग्रेशन फंक्शन। अब उस डेटा को रिग्रेशन फंक्शन में फिट करेंगे, अगर फिट हो जा रहा है इसका मतलब कि वो नॉइज फ्री है, और नहीं फिट हो रहा है दैट मीन्स डेटा हैविंग सम नॉइजेस। उसके बाद आपके पास वेलोसिटी टेक्निक, यानी डिटेक्ट एंड रिमूव द आउटलियर्स, कुछ डेटा ऐसे जो प्रॉपर्टीज अलग ही है, सारे डेटा की प्रॉपर्टी एक जैसी है, और एक डेटा ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टीज सबसे अलग है, तो उस डेटा को हम रिमूव कर देंगे, तो आपने नॉइजेस को रिमूव कर दिया। अनदर कंबाइंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शंस, यहाँ तो आप मैनुअली आप देखेंगे उसको और देख कर बताएंगे यहाँ पे एरर है नहीं, ह्यूमन बीइंग भी देखकर कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप लोग लेडी हैं जेंट्स भी खाना बनाते हैं, आप लोग खाना बनाते होंगे, चावल देखा होगा आप लोगों ने, चावल राइस जिसको बोलते हैं, राइस बनाया होगा आप लोगों ने, तो जनरली राइस बनाने से पहले उसमें हम उसको क्या करते हैं, कंकड़ समझते हैं, स्टोन उसमें मिक्स होता है, तो सबसे पहले मैनुअली उसको क्या करते हैं निकालते हैं, यानी उसमें नॉइजेज है। और आजकल बिजनेस में क्या करते हैं आपके पास उसे मिक्सिंग कर देते हैं,
वेट बढ़ाने के लिए। जो भी राइस है उसमें क्या क्या कंक्रीट छोटा छोटा डाल दिया, पता नहीं चला। अब उसमें अगर उसको आपने राइस बनाया, खाने के बाद टेस्ट खराब हो जाएगा, राइट ना। तो क्या करते, उसे बनाने से पहले उसके नॉइजेस को रिमूव करते, यानी जो भी है तो क्या करते, मैनुअली उससे निकालते। मैनुअली नहीं निकालना तो दूसरा तरीका क्या होता है, मैनुअली में तो टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा देकर आपने कर दिया। या एक और टेक्निक आपको पता है कैसे करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, पानी में देखो वो भी हो जाएगा, तो भिगोने से निकल जाएगा उसका। कुछ जो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इसका डेंसिटी कम होगी तो पानी ऊपर आ जाएगा। जैसे आपको इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उसमें इंसेक्ट अगर होते हैं तो उस वो पानी से वो ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जो कंक्रीट है वो नहीं आता है। तो और कोई उसके लिए भी अभी तक टेक्निक है कोई? अब मूवमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है उतना प्रेशर ऊपर आ जाएगा, आवाज आएगी। चलिए आवाज आ गई तो पहचान तो गए कि है, लेकिन निकालेंगे कैसे, फिल्टर आउट कैसे करेंगे, ये सवाल। चावल को उठा लेंगे, पत्थर करके नीचे रह जाएगा। चावल तो फिर तो वही मैनुअल हो गया ना। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आप करें, छलनी में तो चावल नहीं निकल सकता, बारीक उसी शेप का है, उसी शेप का है। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। मान लिया शुगर एंड सॉल्ट को एक साथ मिला दिया, शुगर एंड सॉल्ट को एक साथ मिला दिया और आपसे कहा जाए दोनों को अलग करो, कर पाएंगे? ये भी नॉइजेज आ गए उसमें, शुगर हवा के सामने तो करते हैं, हाँ वो ठीक था, वो चावल में चल जाएगा। चावल में जब करते हैं ना तो उसमें प्रेशर से, लेकिन 100% नॉइजेज नहीं होता है, 100%। लेकिन जो बारीक होगा ना, जिसका वेट जो है चावल के वेट के बराबर होगा, वो साथ में रहे, तो उसको आपको मैनुअली करना होगा इस्तेमाल। लेकिन सवाल है कि शुगर, हाँ वो एक टेक्निक है जो केमिकल, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। उसको बॉयल करेंगे, आप दोनों को क्या करेंगे, वाटर में मिक्स कर देंगे। मिक्स है, दोनों को वाटर में मिक्स कर देंगे तो पता नहीं चलेगा आपका, चाहे शुगर हो या सॉल्ट हो, तो वाटर में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे तो शुगर अलग हो जाएगा और नमक पहले हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, दोनों अलग हो जाते हैं। एक तो टेक्निक है जो शुगर और सॉल्ट को अलग, ये रिसर्च है। आपका रिसर्च ज्योग्राफी का ना केमिस्ट्री से कुछ मिलता जुलता है नहीं, आप लोग केमिस्ट्री के साथ भी काम कर सकते हैं, इस तरह कुछ आप लोग भी आता हो फिजिक्स से, केमिस्ट्री के। तो बहुत सारे, अब वो देखिए वहाँ भी नॉइजेस था, आपने रिमूव किया। देखिए आपका जो एक्चुअल डेटा है, उस डेटा से आपको नॉइजेस को निकालना है। तो उसको नॉइजेस को निकालने के लिए जो आपके पास मेथड है यहाँ पे, जब आप रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे, रिग्रेशन है, आपके पास बीनिंग है, क्लस्टरिंग है, कंबाइंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उस कंप्यूटर से इस्तेमाल किया, कुछ दोनों मिक्स करके आप उससे नॉइजेस को रिमूव कर सकते हैं। और जब ये रिमूव होगा कंप्लीट नॉइजेस, देन द डेटा विल बी द क्वालिटी डेटा। सो नॉइजी डेटा, अब बिलिंग का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बिलिंग का एक एग्जांपल देता हूँ, उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद आप लोग इस्तेमाल रिसर्च करते होंगे इसको। ये बिलिंग मेथड है, डेटा को स्मूथ करने के लिए नॉइजेस को कैसे रिमूव करना। सपोज सॉर्टेड डेटा प्राइस में करना, वो 8 है, सो पार्टीशन इज इनटू इक्वल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इक्वल डेप्थ डी, इसको बोलते हैं हम बिल्स। तो आपने क्या किया, आपने 15 का 1 मिलियन लिया, फिर 15 से लेकर 21 से लेकर इक्वल, देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और 5 का आपने तो कितने दिन बन गया? आप 4 दिन कर सकते थे, 4 का भी कर सकते थे। अब इसको स्मूथ बाय बीइंग मीन, आपने क्या किया, ये क्या निकाला आपने, मीन निकाला। सब पे जगह जो मीन है आपने रखा, उसके बाद इसका भी मीन निकाला, आपने जो मीन है इसका भी मीन, तो ये आपका स्मूथिंग होगा।
अब स्मूथिंग बाय बीम बाउंड्रीज। अब इसमें देखिए लोएस्ट क्या है, 4 है और हाईएस्ट है ना। तो ये जो आपके पास इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके इसके बीच का डिफरेंस है 5। अच्छा अब चलिए इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके इसके बीच में डिफरेंस कितना है 7। तो अब ये दोनों नियरेस्ट किसके, 4 के या 15, 4 के नियरेस्ट है, तो ये 4 से रिप्लेस होगा। हाँ यानी बाउंड्री वैल्यू देखना आपको, बाउंड्री 4 है और इस एलिमेंट को देखिए ये किसके नियरेस्ट है, ये 4 के नियरेस्ट, यानी किसमें डिफरेंस करें और 8 को कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो 8 से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कितना होगा 7। अच्छा ये नियरेस्ट 4 का हो गया, 4 किया आपने। ये 9 इससे और इससे निकालिए, तो 9 ही नियरेस्ट टू 4 तो बाउंड्री, इसको बाउंड। इसी तरह से आप 21 इधर 4 एंड 25 इधर हाईएस्ट, तो 21 के नियरेस्ट 21 है, 24 इसके नियरेस्ट है। इसी तरह से 26 28 ये तरीके होते हैं कि अनदर मेथड टू स्मूथ एंड रिमूव द नॉइजेस फ्रॉम द डेटा। कौन सा यहाँ अभी देखिए लास्ट 26 का लोअर वन एंड 34 इज द हायर, तो 26 अब 26 28 इज नियरेस्ट टू 26, नहीं आपको लोअर एंड अपर देखना है, लोअर 26 एंड अपर 30। तो अब 28 नियरेस्ट टू 34 और 28 नियरेस्ट टू 30, 26 और 29 नियरेस्ट टू 26। तो दिस इज द स्मूथिंग बाय बीम बाउंड। तो इन ये तरीका है टू रिमूव द नॉइज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड में। बीम मींस हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए वॉल, ये तीन बीम बना, यानी कि आपने मान लीजिए रियल एग्जाम्पल देते अभी उन्होंने कहा कि हमें वोमेन्स के सर्वे करना, तो आप मान लीजिए कि आपको एनालिसिस करना है कि व्हाट टाइप्स ऑफ वोमेन रिसाइडिंग इन इंडिया, तो हाइट से करना है। तो एक आपको 3 पैरामीटर होगा, एक हाइट होगा, एक और कोई पैरामीटर नहीं, उसे जो मिलता जुलता है ना उसी कैटेगरी में रखेंगे, तब आप ब्रॉड कैटेगरी में कर देंगे कि ये हमारा